Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Now, today was another amazing day into the markets. And before moving ahead, I would like to first, thank you all for this amazing participation that we had in yesterday's technical analysis webinar. It was an amazing webinar. Thank you, everyone, for every one of those members who did participate in the webinar to actually get empowered with the right kind of learning in the most simple way about how technical analysis works and what it is. So अगर आप interested हैं कि उस technical analysis webinar की आपको if you want to watch the recorded webinar, you can talk to the support team. You can tell the support team, the link of the support team is in the description below. You can ask them for the recorded webinar. They'll tell you the details about the charges and all those things. So thank you so much for the participation, and let's quickly talk about what happened in the markets today. The market was fueled by the banks in initial 1.5 to 2 hours. It was fueled by Axis Bank and ICICI Bank. ICICI बैंक ने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं. इट इज द रिजल्ट्स आर बिलो द स्ट्रीट एस्टिमेट्स, मार्केट एस्टिमेट से कम है, बट स्टिल द रिजल्ट्स आर वेरी गुड. सो दैट शोड अप इन द मार्केट्स टुडे. ICICI started moving up as the day opened, and Axis Bank turned out to be the top gainer in the Nifty 50 index, closed I think more than 4.5% or so, closed above more than 4.5% or so. So it was a fuel, the whole index was fueled by the banking stocks in the initial 1.5 to 2 hours. But उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद the banking stocks started to pull down, started to fall back. They came under some good selling pressure. Profit booking kicked in, and 14,500 का जो निफ्टी का लेवल है वो अभी भी बहुत ब्यूटिफुली रिस्पेक्ट किया जा रहा है. The resistance is still there. So looking at today's market, it was a huge gap up opening. पिछले 3 मंडे से गैप डाउन ओपनिंग हो रही थी और मार्केट्स बहुत ज्यादा गिर रहे थे, जिसमें से 2 मंडेज में रिकवर भी हुए मार्केट्स कुछ हद तक. पर इस बार ये फाइनली चौथा मंडे है. इट इज द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, last weekly expiry of April, and we saw good opening for the day on Monday. So this is a sign that yes, markets are testing the upper side. Markets are testing the resistance. If something goes well, if some good news comes up, if the ground reality is going to get better, जैसे महाराष्ट्र में कोविड केसेस कंपैरेटिवली कम हुए हैं, बट दैट इज अबाउट 1 or 2 days. सो इफ दीज थिंग्स गेट बेटर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज गॉट रेडी टू हेल्प इंडिया इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ वैक्सीन. तो इस तरीके की न्यूज अगर आती रहेंगी और इनसे कुछ पॉजिटिविटी फ्यूल अप होगी, 1 मई से वैक्सीनेशन चालू होने वाला है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए. अगर ये सारी चीजें आती रहेंगी और कुछ पॉजिटिविटी आएगी, देन द मार्केट्स विल डेफिनेटली रिएक्ट टू इट इन अ बेटर वे. एंड फ्रॉम हियर ऑन, अगर 14,500 का लेवल एक दिन और ब्रेक होने के बाद सस्टेन कर जाता है, देन वी माइट सी an upside of 14,700 or 14,800 in the upcoming weekly expiries. That's what we can see from here. So we'll discuss everything, we'll analyze and discuss everything in this video. Stay tuned till the end of the video and make notes, my friend. More power to you, my friend. I keep saying that the power comes from learning and discipline. When you are trading into stock market as an intraday trader, तो discipline आपका सबसे बड़ा दोस्त है. Discipline में रहना सीख लीजिए, आप जरूर जीतेंगे. That's what I try to convey to all the Red Circle members as well who attended the webinar yesterday. So I hope you are going to enjoy this video. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में जो ट्रेडिंग करते हैं उनके बीच में इस वीडियो को जरूर फैला दीजिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द करेक्ट नॉलेज, दैट सफिशिएंट रिक्वायर्ड नॉलेज to trade much better into the markets. Knowledge and discipline are your best friend. So let's move ahead with the video. This is Utkarsh Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show. So without further ado, let's start the video, and let me quickly turn on the screen recording for you. Okay, so yeah, let's quickly talk about a few important post-market bites, important news and such events that can affect the markets in the upcoming days, and that has been affecting the markets today. So number one, the most important thing, ICICI Bank has reported more than 3-fold jump in the standalone net profit at rupees 4,402 crores. So it is a huge jump in profit, but एनालिस्ट एस्टिमेट से नीचे रहा. उसके बाद भी since it's a good result, so we can see that it has been reflected into the markets today itself. Axis Bank
एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट आने को है एंड इट हैज फ्यूल्ड अप. लुकिंग एट द आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स, द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस गॉट fueled up and Axis Bank got supercharged and shot up to become the top gainer for the Nifty 50 index and closed up more than 4.33%. So other than that, Nifty, one second, let me shift it up so it would be much more clearly visible. Okay, so other than that, steel prices are continuously moving up and metal stocks are shining because of that. So it is a good time to invest into metal stocks, I believe. Nifty opened the day with a gap up at 14,458. It was a good 100, more than 100 point gap up and तकरीबन 100 पॉइंट वहां से और मूव करने के बाद, आफ्टर मूविंग अप नियरली 100 पॉइंट्स फ्रॉम द ओपनिंग लेवल, द इंडेक्स वाज नॉट सपोर्टेड बाय द बैंकिंग सेक्टर एंड स्लोली स्टार्टेड फॉलिंग. और कहीं ना कहीं जहां ओपन हुआ था वहीं कहीं जाके इंडेक्स क्लोज हो गया, थोड़ा सा उससे ऊपर क्लोज हुआ इंडेक्स. सो निफ्टी क्लोज द डे एट 14,485. It opened at 14,458 and closed the day at 14,485. That was up by 143 points and that is 1% for the day. So Bank Nifty opened at 32,260 with a 500 point gap up opening. देखिए बहुत बड़ी gap up opening या बहुत बड़ी gap down opening जब आ जाती है ना, तो इंडेक्स के अंदर का मोमेंटम वैसे ही काफी ज्यादा खत्म हो चुका रहता है. पहले 1 आवर के अंदर जो हमने एक सक्सेसफुल ट्रेड सेटअप किया था रेड सर्कल मेंबर्स के साथ, मैंने वो ट्रेड सेटअप शेयर किया था एंड आई बिलीव अ लॉट ऑफ दोस मेंबर्स हैव मेड ग्रेट प्रॉफिट्स विद दैट फर्स्ट ट्रेड सेटअप. मैंने ट्रेड होने के बाद उसको रेगुलर चैनल पे भी शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पे. जस्ट इन केस आपने टेलीग्राम पे मुझे अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और यू कैन गो ऑन टेलीग्राम एंड सर्च फॉर रोरिंग बुल्स, यू विल फाइंड इट. सो 500 पॉइंट गैप अप ओपनिंग के बाद आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक की मदद से कुछ समय तक इंडेक्स सस्टेन किया, बट पहले 1 या 2 घंटे के बाद हैवी प्रॉफिट बुकिंग अंदर आ गई और उसके बाद इंडेक्स हैज क्लोज द डे अप्रॉक्सिमेटली एट द सेम लेवल इट ओपन, जस्ट लाइक निफ्टी 50. 500 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था और 552 पॉइंट जाके ऊपर क्लोज हुआ है. सो इट हैज क्लोज द डे एट 552 पॉइंट्स अप, दैट इज 1.74%. बट द पॉइंट इज कि इंडेक्स को अगर देखेंगे आप तो ओपनिंग लेवल के बाद कहीं कुछ खास मूवमेंट आया नहीं दोनों ही इंडेक्स के अंदर. It was kind of a volatile and a sideways day. अगर आप देखेंगे तो that is how the day looked like. Now, what is my view on the markets ahead? What do I think that markets? How can the markets behave? Since Nifty has still not given a close above 14,500 level, so I am not very bullish on the market. But yes, in जनरल आई एम अ लिटिल बुलिश नाउ क्योंकि 14,500 का लेवल ब्रीच हो सकता है if supported by what? If supported by, I'll tell you, Reliance, and if supported by the banking stocks. So Reliance is a sleeping giant. As I keep telling you, Reliance is about to declare its results, and even today Reliance closed 1.7% up. So if Reliance wakes up, then there's a huge possibility that Nifty can sustain the level of 14,500 and it might move up further. So other than that, moving ahead 14,500 to 14,580 जोन जो है, 14,500 से लेकर 14,580 का जो जोन है, ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस होने वाला है निफ्टी के लिए. इसको अगर निफ्टी 1 या 2 दिन सस्टेन कर जाता है, देन वी माइट अगेन बी बुलिश ऑन निफ्टी एंड इट कैन मूव फर्दर अप टू टेस्ट फ्रेश लेवल्स ऑफ 14,800 एंड 15,000. ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं एक जनरल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक रिडक्शन, पॉजिटिव नंबर ऑफ रिडक्शन है केसेस में महाराष्ट्र के अंदर. पॉजिटिव केसेस में थोड़ा सा रिडक्शन है, but again that's just a one day figure, that's not a very big positive sign. US has been helping out India for, US is ready to help out India for the raw materials of the vaccine, so that is definitely a good news. Okay, other than that, how our trading profile looked like for the day, we'll see to it. So we took first trade in Bank Nifty and we took the 32,300 कॉल ऑप्शन, दैट वाज एट द मनी कॉल ऑप्शन. मैं आपको हमेशा ये चीज बताता हूं, कोशिश करके हमेशा एट द मनी कॉल ऑप्शन या उससे भी अच्छा हो तो इन द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, जो भी है, आप जो भी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं वो कोशिश करिए कि एट द मनी या इन द मनी हो. जब आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उस पर टाइम डिके का बहुत सीरियस इफेक्ट आता है और टाइम डिके के कारण आप बहुत ज्यादा बेनिफिट ले नहीं पाते हैं. मान लीजिए इंडेक्स में हेवी मूवमेंट आता भी है, पर आप में से बहुत से लोग कम प्रीमियम देने के चक्कर में बहुत फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं. अभी इंडेक्स 32,000 चल रहा है, 32,100 चल रहा है, आप 33,400, 33,200 का कॉल ऑप्शन लेके ट्रेड कर रहे हैं अगर, तो उसमें मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको. और आप जब तक आपका इंडेक्स यहां पे अगर 100 पॉइंट में मूव करेगा तो वहां पे आपको कोई खास मोमेंटम नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू ट्रेड इन एट द मनी और इन द मनी कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस, whatever you are trading, to get the most benefit out of that as an option buyer. Okay, so you have to understand that. ठीक है, so बैंक निफ्टी का 32,300 का कॉल ऑप्शन हमने ट्रेड किया. वी बुक गुड 60 पॉइंट्स ओवर देयर, सो 1,500 रुपीज हमने वहां बुक किए पर लॉट.
और उसके बाद निफ्टी में हमने 2 बार ट्रेड लेने की कोशिश करी, पहली बार लिया था, दूसरी बार नहीं ले पाए थे बिकॉज हमारे लेवल सस्टेन नहीं किए थे, बाइंग लेवल्स, इंडेक्स साइडवेज चल रहा था। पहली बार हमने जब लिया तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने ब्यूटीफुली 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया और उसके बाद हमने ट्रेडिंग क्लोज कर दी, बिकॉज दैट्स अ सिंपल रूल माय फ्रेंड, इफ द डे इज वेरी मच साइडवेज और हमको दिख गया है साइडवेज है, इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड. We are already into one good profit. Why to trade further? Why to risk our profit much more? Why to risk our capital much more? ये जो सेकंड ट्रेड भी हमने लिया, ये इस कारण से लिया, अपने स्टॉप लॉस को इतना छोटा रखते हुए लिया कि हमारे पहले जो प्रॉफिट आया था वो पूरी तरह डिसॉल्व ना हो, उतना ध्यान में रखते हुए हमने सेकंड ट्रेड का स्टॉप लॉस रखा. We did hit the stop loss, so anyways we ended the day in green. It was a minimum of 500 rupees plus of profit per lot, and that was a wonderful day. I personally booked more than 10,000 rupees in profit, so that is very much fine. I think it was a good day. Now let's move ahead and see how was the performance of the Nifty 50 index. So if you can see, there were 37 advances and just 12 declines. So overall the performance was good. It was a very bullish performance as I can see from here. अब हम देख लेते हैं एक बार FII DII data क्या अपडेट हो चुका है. So yes, 26th April FII DII data is there. Again, FIIs have been the net sellers in the market, 1,111.89 crores sold by the FII. So again, FIIs are on a continuous selling streak. Can you see that from the last 5 days? So if FIIs are on the selling streak, तो market को support कौन कर रहा है? So markets are being very hugely supported by the DIIs. Can you see from past 6 trading sessions, DIIs have been continuously buying into the markets very heavily. So that means that DIIs are the net supporters for the market, and these DIIs are the institutions that have been helping the market to sustain the 14,200 level. 14,200 level का level जो sustain हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से हुआ है. Okay, so that's a good thing to see here that the DIIs have come into action. Let's look at the top gainers for the day. If you will see, the top gainers for the day were Nifty Reality. The indexes, main indexes for the gaining sector was the Nifty Reality sector, Nifty Metal, again जैसा मैंने आपको बताया, Nifty Private Bank, Nifty PSU Bank were the top gainers for the index. But India VIX has also shot up, and that's not a very good sign. India VIX has shot up by 0.8%, and if you will see, Nifty Pharma was the only major loser. Other than that, there was no major loser sector for the index. Okay, so let's move ahead and discuss all the charts. Let's look at the option chain data. Option chain क्या बोल रहा है हमसे Nifty 50 का, इसको हम देख लेते हैं. कल हमने एनालिसिस जो करी थी, लास्ट एनालिसिस जो हमने करी थी, उसमें 14,000 के लेवल पे 55 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट से, 55 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट से अभी हमको कितने दिख रहे हैं? 59.7. सो 14,000 लेवल, 14,050 जोन इज बिकमिंग अ ह्यूज सपोर्ट for Nifty 50 index. Mark my words, this is a huge support for Nifty 50 index. 14,000 very good support. अगर हम 14,500 के लेवल की बात करें तो यहां पे भी बहुत जबरदस्त पुट साइड ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, यानी 14,500 अगर ब्रेक हो जाता है, ब्रेकआउट मिल जाता है, तो 14,500 भी एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा अपकमिंग डेज में. और मेजर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो द मेजर रेजिस्टेंस इज नाउ अवेलेबल एट 14,800. 700 से 800 के जोन में मेजर रेजिस्टेंस अवेलेबल है. सो मेजर सपोर्ट अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो मेजर सपोर्ट आपको यहीं पे मिल जाएगा. 14,300 इज योर मेजर सपोर्ट फॉर द इंडेक्स एज ऑफ नाउ, एंड 14,700 इज योर मेजर रेजिस्टेंस फॉर द इंडेक्स एज ऑफ नाउ. तो ये आपकी ट्रेडिंग रेंज हो सकती है कल के लिए. कल के लिए मैं बोल रहा हूं, वीकली एक्सपायरी के लिए नहीं बोल रहा हूं. वीकली एक्सपायरी के लिए ट्रेडिंग रेंज थोड़ी और वाइड भी रखी जा सकती है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ओपन इंटरेस्ट एडेड प्लेस ऑन पुट साइड, एंड दिस इज द मोस्ट ओपन इंटरेस्ट एडेड प्लेस ऑन द कॉल साइड. तो ये वीकली एक्सपायरी के लिए ट्रेडिंग रेंज हो गई, और ये कल के लिए आपकी ट्रेडिंग रेंज हो सकती है. ओके, सो लेट्स लुक एट द चार्ट्स. लेट्स क्विकली लुक एट द चार्ट्स ऑफ निफ्टी 50. अगर हम निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे, सो as you can see very clearly, it was a gap up opening and index very beautifully respected the levels as well. क्या आप यहां देख सकते हैं कि यहां से जो gap up opening मिली, उसके बाद इंडेक्स ने completely 14,416 का जो लेवल मार्क्ड है एज अ सपोर्ट लेके, it went back up. It came down till 14,416 but it went back up, और यहां से फिर इंडेक्स तकरीबन 10 बजे तक सिर्फ ऊपर ही जाता रहा. इंडेक्स faced the resistance near to our हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस लेवल. यहां पे आपको एक पाइवट पॉइंट भी दिख रहा होगा. दिस इज आवर पाइवट पॉइंट, वन थिंग, एंड सेकेंडली आवर हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस 14,577 इज आवर हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस. सो इंडेक्स फेस द रेजिस्टेंस, और यहां से फिर इंडेक्स स्लोली जो है गिरना चालू हो गया. ठीक है, and it closed the day very near to where it opened the day. So कोई खास मोमेंटम नहीं था इस पर्टिकुलर जोन की. अगर हम बात करें तो बस इस जोन के बाद कोई खास मोमेंटम नहीं था. बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी हमने इस जोन के पहले ही अपना ट्रेड सेटअप कर लिया था, क्योंकि बहुत क्लियरली लेवल्स दिख रहे थे. मैं आपको अभी बताऊंगा मैंने कब ट्रेड सेटअप किया था. एंड
द इंडेक्स वॉज ऑलमोस्ट साइडवेज, अ लिटिल डाउनवर्ड्स बट साइडवेज। उसके बाद आगे के लिए बात करेंगे लेवल्स की। सो यार इनिशियल सपोर्ट इज राइट नाउ अवेलेबल एट, सपोर्ट 1 इज राइट नाउ अवेलेबल एट 14,416, ठीक है। इस लेवल को मार्क कर लीजिए, पहला सपोर्ट यहां पे है। दूसरा सपोर्ट आपको यहां पे मिलेगा, सपोर्ट 2 इज एट 14,355, ठीक है। ये हमने दोनों सपोर्ट्स की बात कर ली है कल निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए। रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस सबसे पहला जो इंडेक्स को फेस करने को मिलेगा वो यहां पे बहुत क्लियरली विजिबल है आपको। देखिए एक बार यहां पे ध्यान से देखिए, पहला रेजिस्टेंस इंडेक्स को यहां फेस करने मिलेगा 14,500 से लेके 14,541 का जो ये जोन है, ये पूरा R1 है, ठीक है। दिस इज योर रेजिस्टेंस। क्या है ये R1? 14,500 से लेके 14,541 तक का जो पूरा जोन है, दिस इज योर इनिशियल रेजिस्टेंस। एंड योर सेकंड रेजिस्टेंस इज अवेलेबल राइट हियर, R2 इज मार्क्ड 14,681, ठीक है। तो 14,500 अगर इंडेक्स सस्टेन कर लेता है तो आपको यहां तक जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50 इंडेक्स। हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों की बात कर ली है। इसको एक बार स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमने देखा है, लार्जर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, ठीक है। लार्जर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं निफ्टी को, 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या बोल रहा है। सो दीज आर ऑल द लेवल्स दैट वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड इन निफ्टी फॉर द 1 आवर टाइम फ्रेम। लेट मी डिलीट दिस ड्राइंग, इसका कोई यूज नहीं है अब। 1 सेकेंड, लेट मी डिलीट इट। ओके, सो यस, ये लार्जर टाइम फ्रेम में हमको जो है लेवल्स दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडेक्स एक डाउनवर्ड मोमेंटम में था पिछले कुछ समय से, बट उसके बाद पूरा अप्रैल अगर आप देखेंगे तो अप्रैल में इंडेक्स ने बड़े बड़े गैप डाउन्स दिए हैं आपको, बड़े बड़े गैप डाउन्स दिए हैं आपको इंडेक्स ने। यहां पे गैप डाउन है, फिर यहां पे गैप डाउन है। सो गैप डाउन्स का जो फेज था वो मंडेज को आ रहा था, और फॉर्चुनेटली इस मंडे को वो गैप डाउन फेज खत्म हुआ है। ये जो बड़े टाइम फ्रेम में आपको लेवल्स दिख रहे हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। 1 सेकेंड। ओके, सो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमको जो लेवल्स दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं। लेट मी मार्क देम फॉर यू। 14,619 से लेके 14,671 ये हमारा रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, मार्क कर लीजिए इसको। और सपोर्ट जोन बहुत क्लियरली, जो मेजर सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं वो ये पूरा सपोर्ट जोन है, ये आपका पूरा सपोर्ट जोन है। 14,323 से लेकर 14,400 के बीच में कहीं आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स एज पर द लार्जर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने इसको देख लिया है, ओके। बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स को पहले लार्जर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, फिर स्मॉलर पे देख लेंगे। लार्जर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ऑल द लेवल्स आर वेरी ब्यूटीफुली रिस्पेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, काफी समय से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था जो कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। क्या आपको यहां पे दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड? क्या आपको यहां पे दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड? द इंडेक्स वाज कंटिन्यूअसली मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज कंटिन्यूअसली, बट उसके बाद अभी कुछ समय से यहां पे एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, और ये कंसोलिडेशन वी कैन कॉल दिस एज एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन, ठीक है, वी कैन कॉल दिस एक्यूमुलेशन फेज। यहां पे मार्केट डिसाइड कर रहा है कि दैट शुड आई गो अप फ्रॉम हियर ऑन। द बायर्स आर बिकमिंग अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट टू ट्रेड इनटू मार्केट्स फ्रॉम हियर ऑन एंड बाय इनटू मार्केट्स फ्रॉम हियर ऑन। सो दिस इज अ गुड थिंग टू सी दैट द डाउन ट्रेंड हैज स्टॉप्ड फ्रॉम past I think 3 or 4 trading sessions the downtrend has been a little paused, ठीक है। अगर देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में लेवल्स की बात कर लेते हैं। सो योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट विल कम अराउंड एट 32,000 लेवल, ठीक है। ये आपका एक सपोर्ट जोन है, 32,084 का जो लेवल है, दिस वुड बी योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें, सो 32,000 431, सॉरी रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें मेजर रेजिस्टेंस की, तो 32,833 इज गोइंग टू बी योर मेजर रेजिस्टेंस एंड 32,084 इज गोइंग टू बी योर गुड सपोर्ट। दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द बैंक निफ्टी इंडेक्स एट अ लार्जर टाइम फ्रेम, ओके। स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाने से पहले हम इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार देख लेते हैं, सो दैट वी विल हैव अ मोर बेटर क्लियर पिक्चर ऑन द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स। क्या दिख रहा है ऑप्शन चेन से? देखिए बहुत क्लियरली दिख रहा है 31,500 एक अच्छा सपोर्ट है, 31,500 एक अच्छा सपोर्ट है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, फॉलोड बाय 31,000 एट इज अ इवन फर्दर गुड सपोर्ट। अगेन 32,000 का अगर आप लेवल देखेंगे तो यहां पे पुट साइड ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है, यानी 32,000 का लेवल जो है वो फिलहाल के लिए एक ओके सपोर्ट है, ठीक है, ओके सपोर्ट है। अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है देन वी कैन सी एन अप मूव टुवर्ड्स 32,500 एंड 33,000 जोन, ठीक है। ये आपका मेजर रेजिस्टेंस 33 पे आपको अवेलेबल है, और माइनर रेजिस्टेंस यहां पे अवेलेबल है R0 एंड R1, ओके। सो एज पर द ऑप्शन चेन व्हाट आई बिलीव इज जो मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने मिल सकता है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से कल के लिए, आई फील दैट मूवमेंट इज 1 सेकेंड, मैं आपको एक बार लेवल्स फिर से बता देता हूं।
the levels can be 31,500 to 32,800. This can be the level for trading for बैंक निफ्टी इंडेक्स फॉर टुमारो. ठीक है, ये लेवल आपका कल हो सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर. एक बार स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी को हम देख लेते हैं. सो व्हाट डज बैंक निफ्टी टेल अस? पहले तो ये समझिए कि हमने जो आज ट्रेड सेटअप किया था वो कहां किया था और उसके पीछे का लॉजिक क्या था. ठीक है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा. सो इफ यू कैन सी इट हियर, इट वाज अ बिग गैप अप ओपनिंग. इट वाज अ बिग गैप अप ओपनिंग और उस गैप अप ओपनिंग की पहली कैंडल ने ही आपको ये बता दिया था कि द इंडेक्स इज अ बिट बुलिश ओवर हियर. ठीक है, बहुत क्लियरली बता दिया था. सेकंड चीज क्या क्लियरली दिख रही थी, ये एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है आपको. ये पूरा जोन मार्क कर रखा था मैंने. ठीक है, एक जोन था, एक लाइन नहीं थी, एक जोन था. मास्टर क्लास में, कल की जो वेबिनार मास्टर क्लास है, मैंने आपको ये चीज क्लियरली बताई दैट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आर बेसिकली एरियाज, दे आर नॉट अ सिंगल पॉइंट. ठीक है, सो इस जोन को इस कैंडल ने बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया. यहां पे हमने अपना ट्रेड सेटअप किया था कीपिंग आवर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो आर सपोर्ट एरिया, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल चुका है, तो हमने यहां पर अपने स्टॉप लॉस रखा. और उसके बाद एक कैंडल नेगेटिव बनी बट द सपोर्ट वेरी वेल सस्टेन्ड एंड द इंडेक्स वेंट बुलिश एंड टच्ड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ 32,598. हमने इस पूरे मोमेंटम को सक्सेसफुली कैप्चर किया. ठीक है, और हमने ट्रेल कैसे किया अपने प्रॉफिट्स को? कैन यू सी दिस 8 EMA लाइन? कैन यू सी दिस 8 EMA लाइन? ये लाइन कहां जाके ब्रेक हो रही है? यहां जाके ब्रेक हो रही है. सो with this candle, with these 3 candles, we did not book our profits. Why did not book our profits? Because our EMA was sustained. ये ईएमए की लाइन ब्रेक होती या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता तो हम अपने प्रॉफिट्स बुक करते. तो घबरा के प्रॉफिट्स बुक नहीं करना है, लॉजिक के साथ प्रॉफिट्स बुक करना है. क्योंकि जनरली मार्केट में क्या होता है, आप घबरा के छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं और लॉसेस में आप बिल्कुल नहीं घबराते. लॉस में आप लगे रहते हैं, 1,000 2,000 4,000 10,000 तक का लॉस झेल लेंगे, बट प्रॉफिट 1,000 भी आया तो रख लेंगे. तो ऐसा नहीं करना है, आपको लॉजिक के साथ ट्रेड लेना है. सो वी ट्रेड आवर प्रॉफिट्स यूजिंग दिस 8 EMA फॉर द डे एंड प्लस वी न्यू दैट दिस इज आवर सपोर्ट जोन. सो दिस सपोर्ट वाज रिस्पेक्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. 12 साढ़े 12 बजे के बाद जाके ये सपोर्ट यहां पे ब्रेक डाउन हुआ है एंड देन द इंडेक्स वेंट अ लिटिल डाउनवर्ड्स. तो जो हमने सेकंड ट्रेड सेटअप किया था निफ्टी में भी वही हुआ था. यहां पे आप देखेंगे तो एक पावरफुल बुलिश कैंडल दिख रही है. दिस कैंडल शोड दैट देयर इज अ बाइंग प्रेशर बट देन अगेन दिस रेजिस्टेंस वाज वेरी ब्यूटीफुली रिस्पेक्टेड और यहां पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इंडेक्स नीचे आ गया. तो कहीं ना कहीं एक सीख यहां पे ये मिलती है हमको एज एन इंट्राडे ट्रेडर कि एक बार हमने यहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, वेरी गुड, वी हैव बुक्ड वेरी गुड प्रॉफिट्स. हमने सेकंड टाइम ट्राई किया बट हमने निफ्टी में ट्राई किया था. फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हमने बैंक निफ्टी में बुक किया बट हमने सेकंड अटेम्प्ट जो था वो निफ्टी में किया था. निफ्टी में भी रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट हो रहा था बट अगर हमारा सेकंड टाइम स्टॉप लॉस हिट हो गया है और हमें दिख रहा है मार्केट साइडवेज है, सो लेट्स नॉट ट्रेड एनी फर्दर. let's try to learn and keep our profits with us. So that's what we did. We kept our profits with us and it was a very good day for us in general overall. Lower time frame में भी अगर हम देख रहे हैं तो जो important support zone है वो 32,000 के लेवल पे एक important support zone है. This is support 1 and दूसरा important support zone जो है वो फिर इट्स फर्दर डाउन दैट इज 31,866 बट आई बिलीव दैट 32,000 विल एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट. रेजिस्टेंस यहां पे क्लियरली अवेलेबल है जहां से आज इंडेक्स ऊपर नहीं जा पाया है, 2 बार कोशिश किया. सो 32,598 इज योर गुड रेजिस्टेंस एरिया. ठीक है, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर सपोर्ट. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी इंडेक्स एज वेल. ओके, आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी लुकिंग एट द चार्ट्स एंड लुकिंग एट ऑल द एनालिसिस दैट वी हैव डन फॉर द डे. Now, if you have any questions, if you think you have a different levels in your mind, please feel free to write in the comments below. Our support team and myself would love to hear from you, my friend. And अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके लाइक से मिलता है मुझे मोटिवेशन प्लस YouTube की एल्गोरिथम को बीट करने में कुछ मदद आप करिए, कुछ हम अच्छा कंटेंट बना के खुद ही कर लेंगे. सो इट वुड बी अ रियली ग्रेट थिंग दैट वी ऑल विल बिल्ड दिस रोरिंग बुल्स कम्युनिटी एंड इट टेक इट टू अ नेक्स्ट फर्दर अप लेवल वेयर वील गेट अ लॉट ऑफ education, where we'll get a lot of knowledge and we'll share it with each other so that we can become much more strong in terms of trading, my friend. So I hope you enjoyed this video. Subscribe करना मत भूलिएगा as I keep saying you that and please stay safe, my friends. Please stay safe. It's a humble request. Do whatever you can to help the people in need. It's a complete mess out there. Everyone is facing so many issues. There's a lot of oxygen shortage. There are a lot of shortage of beds, ICU beds or oxygen beds. So please make sure that you stay safe. हमें हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचना है, हमें उनकी मदद करनी है जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड. डोंट गो आउटसाइड, स्टे इनडोर्स, लॉक योरसेल्फ इन, डोंट गेट इन कॉन्टैक्ट विद एनी पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड. सो आई होप दैट यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड माय बेस्ट विशेस विथ यू फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फैमिलीज हेल्थ.
health. This is your friend Utkarsh Bhargav. Thank you for listening to me. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.